Hello children, welcome to your English video class. Children, in English we are doing main course book, chapter 3, Bake a Cake. Children, this chapter, the explanation of this chapter I have already started since past few videos, and I have read the whole chapter paragraph wise for you, and I have also explained you the chapter. Children, in my previous video I have given you the new words of this chapter. In today's video we'll be doing word meaning of the chapter, and we'll start the exercise. Children, I have read the chapter paragraph wise, so in today's video I'm going to read the whole chapter for you. You can look into your book, you can read after me, or you can hear me reading and later on you can practice it. Okay, so I'll read this chapter once for you. Chapter 3, Bake a Cake, page number 29. It was Mr. Ali's birthday. His daughters Shifa and Nida wished to make it special for him. They decided to bake a cake. They pulled out their mother's recipe book and together went through all the cake recipes. There were recipes for chocolate cake, vanilla cake, strawberry cake, carrot cake, walnut cake, and a raisin cake. Since both liked the color pink, they decided to bake a strawberry cake. They followed the recipe carefully. Nida took 4 eggs and beat them well. Shifa took 2 cups of flour, added 1 teaspoon of baking powder and mixed the two. Next, she mixed 1 cup of butter and 2 cups of sugar together. To this, Nida added the flour and then the eggs. Then Shifa added a cup of fresh strawberry juice and stirred to mix it well. Nida chose a heart-shaped cake tin. She poured the mixture into it and put it in the oven to bake. 20 minutes later, a delicious aroma filled the kitchen. They opened the oven to find a yummy cake for their loving father. Together, they decorated it with strawberry jam and cream and set it on a lovely tray. They took it to their father and wished him for his birthday. What a perfect way to start the day. So this is the chapter. I have read the chapter for you. Now children, you will practice the reading of the chapter at home. आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा. अब हम इस चैप्टर का करेंगे word meaning. We'll do the word meaning of the chapter. Word meaning. First word is recipe. Recipe. Children, first I am giving the meaning of those words which are highlighted in the chapter. जो chapter में highlight किए हुए हैं उनके meaning दूंगी. उसके बाद उसके अलावा अगर कोई इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आपके लेवल का अगर मुझे दिखता है तो मैं उसके मीनिंग भी दूंगी. ठीक है, पहले हम इसको देख लेते हैं. रेसिपी किसको बोलते हैं? मेथड on how to prepare a dish. How to prepare a डिश. किसी डिश को कैसे प्रिपेयर करना है.
ओके रेसिपी का वैसे भी मैं आपको मतलब बता चुकी थी, किसी डिश को कैसे तैयार करना है, कैसे बनाना है। और ये रेसिपी इट कैन बी ऑडियो, इट कैन बी ऑडियो विजुअल, इट कैन बी इन प्रिंट फॉर्म। कोई बोल बोल के बता सकता है, कोई वीडियो बना के बता सकता है रेसिपी, और कोई लिख कर भी बता सकता है। ठीक है, तो रेसिपी कैन बी इन ऑल द 3 फॉर्म्स। नेक्स्ट इज़ फॉलोड, FOLLOWED, फॉलोड। फॉलोड का मतलब क्या होता है? एक्टेड अकॉर्डिंग टू, एक्टेड अकॉर्डिंग टू। फॉलोड का मतलब एक्टेड अकॉर्डिंग टू है, मतलब कि जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसा वैसा करना, उसको कहते हैं फॉलो करना। जैसे कहते हैं ना फॉलोइंग टीचर्स इंस्ट्रक्शन, टीचर जैसा जैसा टीचर बोल रही है उस वैसे करना। फॉलो करना मतलब जैसा कहा जाए वैसा वैसा करना, दैट इज़ कॉल्ड फॉलोइंग या फॉलोड। नेक्स्ट इज़ स्टर्ड। स्टर्ड का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ में स्पून डाल के उसको ऐसे ऐसे हिलाते हैं ना, उसको बोलते हैं मूव द स्पून राउंड इन ऑर्डर टू मिक्स प्रॉपरली। किसी चीज़ को जब हमको बहुत अच्छे से मिक्स करना होता है, बहुत बढ़िया से मिक्स करना होता है, तो हम क्या करते हैं? स्पून डालते हैं और ऐसे 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 जो राउंड 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 उसको करते हैं ना, मूव करते हैं चम्मच को, गोल 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 घुमाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टरिंग, उसको कहते हैं स्टर करना। ठीक है, moved the spoon round in order to mix properly. Number 4, it is delicious. डिलिशियस का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था जब कोई चीज़ बहुत टेस्टी होती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डिलिशियस, वन विच इज़ गुड इन टेस्ट और टेस्टी। Then we have aroma. अरोमा का मतलब होता है स्वीट स्मेल, मीठी मीठी भीनी भीनी खुशबू, जैसे किसी फूल की या खाने की हो, स्वीट स्मेल। मैंने आपको बताया था ना फूलों की खुशबू के लिए भी ये वर्ड यूज़ किया जाता है अरोमा। अरोमा मतलब मीठी भीनी भीनी खुशबू, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जो है रिफ्लेक्शन आ गया है, मैं इसको थोड़ा इधर कर देती हूँ। आई पुट इट दिस वे। ओके, भीनी भीनी खुशबू जो हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड अरोमा। ठीक है, अच्छा अभी इसमें एक दो वर्ड और हैं जिनका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप ये नोट कर लें, इसके बाद मैं और देती हूँ। नाउ चिल्ड्रन, आई विल गिव यू सम मोर वर्ड्स जो कि हाईलाइटेड नहीं है आपके चैप्टर में, वो हाईलाइटेड नहीं है ग्रीन कलर से। ये जो वर्ड्स मैंने दिए हैं ना जिनकी मीनिंग, दीज वर्ड्स आर हाईलाइटेड विद ग्रीन कलर इन योर चैप्टर। ओके, नाउ आई विल गिव यू सम मोर वर्ड्स that may be difficult for you, that may be new for you, and meaning of those words you may need. Excuse me. Daughter. First word is daughter. DAUGHTER. Children, daughter का मतलब होता है a female child. पेरेंट की जो फीमेल चाइल्ड होती है वो अपने पेरेंट के लिए उनकी डॉटर होती है। ठीक है, फीमेल चाइल्ड अपने पेरेंट की डॉटर होती है। देन नंबर 7, इट इज़ स्पेशल। स्पेशल, स्पेशल का मतलब होता है वन विच इज़ नॉट ऑर्डिनरी। ठीक है, विच
नॉट ऑर्डिनरी खाली लिख देते हैं तो भी चलेगा, नॉट, जो कॉमन नहीं है, जो आम नहीं है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्पेशल, नॉट ऑर्डिनरी. Okay, few more words are there. I'll give you those also if you have noted down this. Next word is baking powder. बेकिंग पाउडर. चिल्ड्रन, आपको मैंने बताया था चैप्टर एक्सप्लेन करते समय कि इट इज़ लाइक अ पाउडर, वाइट कलर का होता है, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स लाइक केक. केक के लिए ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है सो दैट द केक राइज अप, केक थोड़ा फूल जाए और लाइट वेट भी हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट लाइट सा हो जाए. जनरली इसको केक में यूज़ करते हैं, बट अदर बेकिंग चीज़ें और भी बाकी चीज़ों में भी डाला जाता है, जैसे ब्रेड वगैरह में भी इसको डाला जाता है. ठीक है, सो इसके लिए लिख सकते हैं अ मिक्सचर ऑफ पाउडर, अ मिक्सचर ऑफ पाउडर used to make cakes. Rice, used to make cake rice and light. उनका वेट भी थोड़ा सा लाइट हो जाए as they are baked. As they are baked. मतलब it is a mixture of powder used to make cakes rice, जिससे कि केक जो है वो फूल जाए और लाइट हो जाए जब उनको बेक किया जाए तो. ठीक है, जब उनको बेक करें तो केक जो है वो फूले फूले हों और सॉफ्ट से हो जाए. नेक्स्ट वर्ड इज़ पोर, POUR. पोर का मतलब क्या होता है? कोई लिक्विड जैसा सब्सटेंस जब हम उसको दूसरे कंटेनर में डालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पोर. मतलब फ्लो कर जाए दूसरे कंटेनर में, जब वो फ्लो करता है दैट इज़ कॉल्ड पोरिंग. तो लिख सकते हैं टू मेक सम लिक्विड या लिक्विड जैसा थोड़ा सा सेमी लिक्विड substances to make some liquid substances flow into other container. है ना, हम वाटर पोर करते हैं, मिल्क पोर करते हैं, कोई भी पकोड़े का अगर आप जो बैटर रेडी होता है उसको पोर कर सकते हैं, इडली डोसा के लिए जो बैटर बनता है उसको पोर कर सकते हैं. मतलब कोई लिक्विड जैसी चीज़ जिसको हम दूसरे कंटेनर में इजीली फ्लो करा देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पोरिंग. ठीक है, देन लास्ट वर्ड इज़ परफेक्ट, PERFECT. परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीटली गुड. कंप्लीटली गुड, या बोल सकते हैं विदाउट फॉल्ट भी बोल सकते हैं. कंप्लीटली गुड विल डू, जो बिल्कुल एकदम पूरी तरह से जो सही हो उसको बोलते हैं परफेक्ट. ठीक है, सो ये कुछ वर्ड मीनिंग्स थे आपके चैप्टर के. रिफ्लेक्शन में क्या आ रहा है? आई थिंक दिस वन इज़ कमिंग, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा ये जो है ये आ रहा है. टू, इसको थोड़ा मैं साइड में लिख देती हूँ, टू मेक. ठीक है, इसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं, टू मेक
सम, फिर आगे ये डाल देते हैं, ठीक है। टू मेक सम लिक्विड सब्सटेंस फ्लो इनटू अदर कंटेनर, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन में आएगा तो आपको दिखेगा नहीं, इसके लिए मैंने इसे थोड़ा सा साइड में कर दिया, या इसको थोड़ा और ऊपर ही लिख देती हूँ तो भी चलेगा। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, 9 टू मेक सम लिक्विड substance flow into other container, ठीक है, flow into other container। ओके, दिस विल डू। ओके, तो ये हमारे वर्ड मीनिंग्स हो गए। अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ और हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज पे अब चलते हैं। चिल्ड्रन, फर्स्ट पार्ट है एज यूजुअल कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन है, लेट्स डू दैट। इसका ओके, कॉम्प्रीहेंशन। क्या है इसमें, मैं लिखती हूँ पहले क्वेश्चन फिर समझाती हूँ। द स्टेप्स फॉर baking a strawberry cake are all mixed up can you number them correctly in the given boxes? Now let me explain you the meaning of the question. पहले तो क्वेश्चन का मतलब ही समझना ज़रूरी है। The steps for baking a strawberry cake are all mixed up. हमने इस चैप्टर में देखा स्ट्रॉबेरी केक बनाने का पूरा स्टेप, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेप्स, है ना। इस चैप्टर में हमने जाना ना कि स्ट्रॉबेरी केक बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, मतलब इंग्रेडिएंट्स क्या है स्ट्रॉबेरी केक बनाने के, और पहले क्या बनाना है, पहले क्या डालना है, कैसे डालना है, और कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप करना है, मतलब पहले एग डालना है या पहले फ्लोर डालना है, पहले बटर डालना है या पहले शुगर डालना है, कब कौन सी चीज़ डालनी है, ये प्रॉपर स्टेप हमने इस चैप्टर में जाना वाइल रीडिंग दिस चैप्टर। तो अब क्या करना है, ये सारा स्टेप ना मिक्सअप हो गया है, आगे पीछे उल्टा पुल्टा हो गया है, ठीक है। मिक्सड अप मतलब बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो गया है। आपको क्या करना है, कैन यू नंबर देम करेक्टली इन द गिवन बॉक्सेस। अब ये जो स्टेप्स सारे उलट पुलट हो गए हैं, इसकी हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करनी है मतलब सबसे पहले कौन सा स्टेप आएगा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, और लास्ट में कौन सा। ये पूरा स्टेप का हमें क्या करना है, वी हैव टू डू द नंबरिंग, ठीक है। अब इसके लिए हमें सारे स्टेप्स पहले लिखने हैं, फिर उसकी हम नंबरिंग करेंगे। नाउ चिल्ड्रन, क्वेश्चन आप समझ गए है ना। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि स्टेप्स उल्टे पुल्टे लिखे, उसे आपको सही करके लिखना है। तो अब मैं क्या करूँगी, पहले तो क्वेश्चन में मिटा दूँ क्योंकि मेरे को जगह चाहिए सारे स्टेप्स लिखने के लिए। उल्टे पुल्टे भी सही, लेकिन लिखने के लिए तो चाहिए ना।
तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको पहले इरेज कर देती हूँ, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम इरेजिंग इट. नाउ व्हाट आई विल डू, ऊपर तो हम ए लिख देते हैं, आई विल राइट द स्टेप्स. जो उल्टे पुल्टे स्टेप्स हैं पहले उसको हम लिख लेते हैं. पहला क्या है, ऐड द स्ट्रॉबेरी जूस, BERRY, strawberry juice, and mix well. Now children, क्या सबसे पहले स्ट्रॉबेरी जूस बना के उसको मिक्स करना था? किसके साथ मिक्स करना था? अगर मिक्स करना था तो ये तो स्टेप नहीं है पहला, है ना. ऐसे ही सब उल्टा पुल्टा हुआ है, उसे हमें सही करना है. देन है नेक्स्ट लिखा हुआ है, बीट द एग्स वेल, बीट द एग्स वेल. नेक्स्ट लिखा हुआ है, बीट द बटर एंड शुगर, बीट द बटर एंड शुगर. नेक्स्ट लिखा है, मिक्स द फ्लोर एंड बेकिंग पाउडर, मिक्स द फ्लोर, थोड़ा सा यहाँ से लिख देते हैं, मिक्स द फ्लोर एंड बेकिंग पाउडर. हो गया. नेक्स्ट लिखना है, पोर द केक मिक्स into a tin. नेक्स्ट है, okay, the next is add the flour, add the flour and then eggs to the butter and sugar. ठीक है. Again I am fed up with this reflection. ये शायद यहाँ पर आ रहा है, this word ना यहाँ पर आ जा रहा है. Add the flour and then, चलिए अब दिख रहा है. हाँ. नेक्स्ट है, बेक इन अ हॉट oven for 20 minutes. Okay, now I have written all these sentences which are mixed up. ये सारे mixed up sentences हैं. अब हम इसको हमें सही सीक्वेंस में करना है. ठीक है, हमें सही सीक्वेंस में करना है जिस सीक्वेंस में निदा और शिफा ने किया था. निदा और शिफा ने जिस सीक्वेंस में किया था हमें उसी सीक्वेंस में अब करना है. सबसे पहला क्या किया था उन लोगों ने? कैन यू रिमेंबर? कुछ आपको याद है? सबसे पहले उन्होंने एग को बीट किया था, है ना. लिखा है ना, अब देखोगे थर्ड पैराग्राफ में, निदा टुक 4 eggs एंड बीट देम वेल. तो सबसे पहले एग को बीट किया गया. फिर उसके बाद क्या किया गया था? फ्लोर को और बेकिंग पाउडर को मिक्स किया गया था. मिक्स द फ्लोर एंड बेकिंग पाउडर.
ये सेकंड स्टेप था, इफ़ यू रिमेंबर, है ना। पहले एग को बीट किया गया था, फिर जो मैदा होता है उसको और बेकिंग पाउडर को मिक्स किया गया था। उसके बाद क्या किया गया था, उसके बाद एक कप बटर और 2 कप शुगर को मिक्स किया गया था, है ना। तो बीट द बटर एंड शुगर, थर्ड था ये कि बटर और शुगर को मिक्स किया गया था, ये थर्ड स्टेप था। फोर्थ क्या था फिर, उसके बाद क्या किया गया था कि फ्लोर और एग को फिर इसमें डाला गया था। फ्लोर को जिसमें कि बेकिंग पाउडर मिक्स था और एग को बटर और शुगर वाले जो मिक्सचर था उसमें डाला गया था। तो ये फोर्थ स्टेप हो गया। फिर फिफ्थ क्या था, फिफ्थ था कि उसमें फिर फ्रेश स्ट्रॉबेरी जूस को डाला गया था, है ना। फ्रेश स्ट्रॉबेरी जूस डाला गया। फिर उस सबको मिक्स करने के बाद उस पूरे मिक्सचर को केक के टिन में डाला गया था। पोर द केक मिक्स इनटू अ टिन। और फिर क्या किया गया था, उसको हॉट ओवन में डाल दिया गया था फॉर बेकिंग, बेक करने के लिए उसको डाल दिया गया था अवन में। फिर से अब आप एक बार हम देखते हैं, देखिए ध्यान से देखिए। जो केक बनाने का प्रोसीजर बताया गया था उसमें क्या था, बीट द एग्स वेल। उन्होंने 4 एग्स लिए थे, उसको उन्होंने प्रॉपरली बीट किया था। ये फर्स्ट स्टेप किया था, डू यू रिमेंबर? हाँ। फिर 1 कप फ्लोर लिया था, उसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर मिला के उसको मिक्स किया था। नंबर 2, मिक्स द फ्लोर एंड बेकिंग पाउडर किया था ना। फिर उसके बाद उन्होंने 1 कप बटर लिया था और 2 कप शुगर लिया था, उसको खूब अच्छे से मिक्स किया था। बीट द बटर एंड शुगर, ये थर्ड स्टेप था। फिर क्या किया था, जब उनका बटर और शुगर का मिक्सचर रेडी हो गया था तब उसमें उन्होंने वो फ्लोर डाला था जिसमें कि बेकिंग पाउडर मिक्स था। तो फ्लोर डाला था और जो उन्होंने एग बीट किया था, बीटन एग जो था वो डाला था। तो ऐड द फ्लोर एंड देन एग्स टू द बटर एंड शुगर। जो शुगर और बटर का जो मिक्सचर है उसमें उन्होंने फिर फ्लोर और एग को डाला था। जो एग उन्होंने बीट किया था और वो जो फ्लोर था वो डाला था। ये फोर्थ स्टेप हो गया। ये होने के बाद फाइनली उन्होंने क्या किया था, कौन सी चीज़ ऐड की थी, स्ट्रॉबेरी जूस। क्योंकि वो स्ट्रॉबेरी केक था तो लास्ट में उन्होंने एक कप फ्रेश स्ट्रॉबेरी जूस को डाला था और फिर अच्छे से उसको मिक्स किया था। अब पूरा बैटर रेडी हो गया था। फिर क्या किया उन्होंने, एक हार्ट शेप टिन लिया था जिसमें कि इस मिक्सचर को पोर किया था। पोर द केक मिक्स इनटू अ टिन। उन्होंने उसको टिन में उसको डाल दिया था। फिर क्या किया, फाइनली क्या किया, बेक इन अ हॉट ओवन फॉर 20 मिनट्स। फिर उस पूरे मिक्सचर को ओवन में डाल दिया था बेक होने के लिए। कितने मिनट्स के लिए, 20 मिनट्स के लिए। सो दिस वॉज द होल स्टेप। अब हमने इसकी नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4 5 6 7। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन कॉपी, यू हैव टू राइट ऑल द स्टेप्स करेक्टली। आपको ये नंबर के हिसाब से, सबसे पहले आप ये वाला सेंटेंस लिखेंगे, देन यू विल राइट दिस, देन दिस, देन दिस, दिस एंड फाइनली दिस। मतलब आप जब कॉपी में लिखेंगे तो आप ये जो जम्बल्ड स्टेप्स को नहीं लिखेंगे, यू विल राइट द करेक्ट स्टेप। सारे स्टेप्स जो सीक्वेंस में है ना वो लिखेंगे। ये स्टेप्स को उल्टा पुल्टा आप नहीं लिखेंगे, नंबरिंग के साथ नहीं लिखेंगे। आप सबसे पहले वही सेंटेंस लिखेंगे जो नंबर 1 पर है। मतलब करेक्ट स्टेप्स आपको लिखना है कॉपी के अंदर। गॉट इट? तो ये हमारा है आज का एक्सरसाइज। हमने फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन किया है आज और उसके बाद है क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। और फिर ग्रामर गली शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन आंसर्स और ग्रामर गली और बाकी के एक्सरसाइजेस जो हैं दैट विल डू, करेंगे इसको हम नेक्स्ट वीडियो में। हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। आज का वीडियो को हमारा जो भी इसमें था ये हमने कर लिया है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी कर लिए, वो जो हमने पिछले वीडियो में ही कर लिए थे। वर्ड मीनिंग आज किया और कॉम्प्रिहेंशन का ये पार्ट किया। आपको समझ में आ गया ना? आपको ये उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है, आपको करेक्ट स्टेप्स को प्रॉपर
सीक्वेंस में ही लिखना है, ठीक है। नंबर 1 को सबसे पहले, नंबर 2 को उसके बाद, ऐसे करके, मतलब दैट विल बी द प्रॉपर स्टेप्स टू मेक स्ट्रॉबेरी केक, और कॉपी में करना है। एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।